Today we are going to talk about communication skills. Hello friends, it's Divya Parasho. Today we are going to talk about communication skills and what is communication skills. If you all know the answer, then please comment down below. So, communication can be defined in many ways. Communication is the exchange and flow of our information and ideas from one person to another one or many other people, whether verbally or non-verbally. Communication from one person to another is commonly depicted in the form of triangle that is consistent of message, receiver and the sender. So first one is verbal communication. What is verbal communication? It refers to the form of communication through the form of message or verbally, orally. It is further divided into two. First one is oral and second one is written communication. What is oral communication? It includes face-to-face conversation, telephonic conversation, voice over internet, video call, voice call, etc. It's depend on our pitch quality, our vocabulary, our volume, speed, clarity of speech, which influences oral communication. Second one is written communication. It refers to the form of communication in which messages can be transmitted through letters, emails, memo, reports, etc. Messages in written communication is influenced by the vocabulary, grammar, or writing style, precision and clarity of the language. कम्युनिकेशन क्या होता है, समझ में आया आप सभी को? मैं बताती हूँ. कम्युनिकेशन एक तरीका होता है हमारे भाव को, हमारा जो इंफॉर्मेशन है, आइडियाज़ हैं, उसको एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की ट्रांसफ़र करने का. हम वर्बली भी कर सकते हैं बोलकर या फिर बिना बोले भी कर सकते हैं. वर्बली होता है, उसके अंदर हम दो टाइप की होता है वर्बली में कम्युनिकेशन जो हम डिवाइड करते हैं. फर्स्ट वन इज ओरल कम्युनिकेशन एंड सेकंड वन इज रिटन कम्युनिकेशन. ओरल कम्युनिकेशन मतलब बोलकर बात करना, बोलकर समझाना दूसरे व्यक्ति को कि हम क्या कहना चाहते हैं. वो बोलकर हो सकता है, वीडियो कॉल के थ्रू, फेस कॉल के थ्रू, फेस टू फेस बात कर कर, फ़ोन पर, टीवी पर, रेडियो पर, है कि नहीं. दूसरा होता है रिटन कम्युनिकेशन, मतलब हम लिखकर हम अपने भाव को प्रकट कर रहे हैं, जो कि हम लेटर के थ्रू करते हैं, बाय ईमेल, फैक्स, मेमो, रिपोर्ट्स. इन सब को जो हम लिख कर देते हैं, उससे भी तो हम अपनी जो बात हम कहना चाहते हैं उसको शेयर कर सकते हैं ना. दूसरा होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. वो होता है कि जिसके अंदर हम अपनी ओरल और रिटन को यूज़ नहीं करते, मतलब कि उसमें हम बोलते नहीं हैं ना लिखते हैं. वो हमारा जो गेस्चर है, अपीयरेंस है, हमारे हाव भाव, हम कैसे बोलते हैं, चलते हैं, हमारा रहना सहना, उसके ऊपर डिपेंड करता है. Okay, it refers to the communication other than oral or written communication. It includes gestures, body language, appearance, facial expression. First one is appearance. What will come in appearance? It will can a speaker's or character's clothing, a hairstyle, and use of cosmetic. Like cosmetic will tell about him or her or the surroundings in which he, she is. Okay, like furnishing, room size, color combination, etc. come in appearance. Next one is body language. It includes postures, gestures and facial expression. जो अपीयरेंस होता है वो स्पीकर का डिपेंड करता है उसके बोलने पर, उसकी क्लॉथिंग पर, उसने क्या पहना है, क्या नहीं पहना है, उसका हेयर स्टाइल कैसा है, उसने क्या कॉस्मेटिक यूज़ किया है, ओवर किया हुआ है, कम किया हुआ है, सब कुछ पर डिपेंड करता है. और किस तरीके की जगह पे रह रहा है, रूम साइज़ कैसा है, बड़ा है, छोटा है, कलर कॉम्बिनेशन क्या यूज़ किया है. ऐसे ही जो बॉडी गेस्चर्स होते हैं वो होते हैं लाइक लैंग्वेज होता है, इसके अंदर पोस्चर, हमारा क्या पोस्चर है, हमारे क्या जेस्चर हैं, हम कैसे अपने हाथ को हिला रहे हैं, कैसे समझा रहे हैं. इट्स ऑल डिपेंड ऑन दैट वन थिंग. नेक्स्ट वन इज communication is divided into other parts too, which is formal communication and casual. We can say non-formal communication too. What is formal communication? Formal मतलब it this word is come from formality. You can say ना formality, हम कुछ formality करते हैं. कब करते हैं? जब कोई बाहर का इंसान आता है, उसके सामने हम
थोड़ा सा डिसेंट सा बन के दिखाते हैं कि हम ऐसे हैं वैसे हैं। अदरवाइज जो हमारा जो कंफर्ट जोन में होते हैं, हम जैसे बात करते हैं नॉर्मली किसी भी व्यक्ति से, दैट इज़ नॉन एज कैजुअल वन, लाइक वी आर टॉकिंग टू आवर फ्रेंड्स, हम अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं, हम आस पास के लोगों से बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर हम अपने आप अपना सेल्फ होता है कि हम क्या हैं वैसे ही रहते हैं। जब कोई और आता है तो हम थोड़े से उनके सामने अच्छे से बन के दिखाते हैं कि आप करके बोलते हैं, थोड़ा रिस्पेक्ट से बोलते हैं। उनके साथ हम ऐसे नहीं बोलते कि हाँ कुछ ही बोल दिया और इधर आए है ऐसे करके, जो हमारी नॉर्मल लैंग्वेज होती है वैसे बात नहीं करते हैं। तो व्हाट इज फॉर्मल कम्युनिकेशन? फॉर्मल कम्युनिकेशन कंटेन्स सर्टेन रूल्स, convention and principles are followed while communicating message. Formal communication occurs in formal occurrence, formal or official style, usually professional setting, conferences, meeting, corporate meeting undergo informal communication, informal pattern. Next one is informal communication, means casual one. It includes all things in contrast of formal communication, like we can use slang words, foul language in this communication. It is established by societal affiliation of members in an organization and face-to-face discussions. It happens among friends and family. In informal communication, use of slang words, foul language is not restricted. बोल सकते हैं, इंपॉर्टेंट भी नहीं कि बोलना ही है, ये तो बस ऐसा है कि हाँ हम बोल सकते हैं, जैसा रहना है सेल्फ वी कैन। यूजुअली इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज डन ओरली, सामने हम बात करते हैं तभी ज़्यादा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो पाती है। तो अब ये बताओ आप सभी कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए। द एलिमेंट्स दैट वन नीड्स टू पोजेस टू मेक सक्सेसफुल कम्युनिकेशन स्किल्स। इफ यू ऑल नो then please comment down below, otherwise I will tell in 1 minute. First one is reflect an image. What can be like reflect and improve, we can say. हम किसी और व्यक्ति को देख रहे हैं, हाँ उसका बिहेवियर बहुत अच्छा है, हम उससे इम्प्रेस हो रहे हैं, तो हमें भी थोड़ा सीखना चाहिए उससे, क्या बोल रहा है क्या कर रहा है वो सब कुछ सीखो और अपने आप को इम्प्रूव करो। सेकेंड वन इज एम्पथाइज। एम्पथाइज का मतलब होता है कि आप उसकी जगह अपने आप को रख कर देख रहे हैं कि आप इसकी जगह होते तो आप क्या करते, क्या करना ठीक रहेगा, ये ठीक कर रहा है नहीं कर रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम सजेशन दे सकते हैं, बता सकते हैं कि मैं होता ना यहाँ पे तो फिर शायद मैं ऐसे करता, ये सही रहेगा ये नहीं रहेगा। नेक्स्ट वन इज हेल्पिंग और फैसिलिटेटिंग, दूसरे को हेल्प करना। बात कर रहे हैं, बात करते करते कई बार हो जाता है कि हम कहना कुछ चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं, वर्ड्स नहीं आ रहे हैं हमारे माउथ में बोलने के लिए कि हमें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, तो हम थोड़ा सा अटक सा जाते हैं। लेकिन हमें मजाक उड़ाने की जगह उन्हें समझाना चाहिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए या फिर ऐसा होगा तो वैसा होगा। इफ़ वी डोंट नो देन वी कांट डू एनीथिंग ना। ओके, नेक्स्ट वन इज इफेक्टिव लिसनिंग। दिस इज बेस्ट वन थिंग, इफेक्टिव लिसनिंग। कोई कुछ भी कह रहा है सिर्फ ध्यान से सुनो, इतना ध्यान से सुनो कि आपको वो चीज़ याद हो जाए, पता चल जाए कि उसने क्या कहा था। इतना ध्यान होना चाहिए हमारा, क्योंकि लिसनिंग स्किल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल होती है कम्युनिकेशन स्किल में। बेस्ट एंड नंबर वन इंपॉर्टेंट पॉइंट इन अवर कम्युनिकेशन स्किल इज लिसनिंग, कि हम कितने अच्छे से लिसन कर रहे हैं, सुन रहे हैं। नेक्स्ट वन इज सेल्फ अवेयरनेस। हमें भी आसपास में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है उस सबकी नॉलेज होनी चाहिए, सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ताकि हम भी कुछ शेयर कर सकें। हमें कुछ पता ही नहीं होगा तो फिर हम ऐसे ही बस चुपचाप बैठे हैं, कुछ पता ही नहीं है, वैसा रहेगा। हमें सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए, ये तो कम्युनिकेशन स्किल की वैसे ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चनिंग। जब कोई बात कर रहा हो तो हमें ध्यान से सुनते हुए क्वेश्चन करना चाहिए, अदरवाइज दूसरे पर्सन को लगेगा कि हम सुन नहीं रहे हैं, हमारी बॉडी इधर है लेकिन हमारा जो ध्यान या हमारा दिमाग है वो कहीं और है। जैसे स्कूल में टीचर्स कहते हैं ना कि कहाँ है ध्यान, नहीं है लेकिन हम होते नहीं हैं, लाइक दैट। नेक्स्ट वन इज असर्टिवनेस। हमें ध्यान देकर देखना चाहिए और मतलब कि वॉट वी आर डूइंग एंड वॉट वी आर नॉट डूइंग। हमें और साथ में हमें पॉजिटिव एस्पेक्ट से सोचना चाहिए कि वो क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। हर चीज़ को नेगेटिव लेके जाना जरूरी नहीं होता है, पहले हमें पॉजिटिव पॉइंट देखना चाहिए फिर नेगेटिव देखना चाहिए। एज वी ऑल नो कि नेगेटिव जो चीज़ें होती है ना वो हमारी बातों को ओवर पावर कर लेती हैं, हमारे जो फीचर्स होते हैं हमारे जो एक्सप्रेशन होते हैं उसको ओवर पावर कर लेती है। नेगेटिव जो है वो हमेशा ऐसे करता है। एक आपको सुना ही होगा कि कोई इंसान अच्छा काम करे
ना करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक गंदा काम हो जाए ना, गलती से छोटी सी मिस्टेक हो जाए तो सारे लोग याद रखेंगे कि हाँ इसने ये काम किया था। तो इसलिए हमें इन सारी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑन, ठीक है। ओके, इफ यू हैव एनी डाउट अकॉर्डिंग टू दिस, प्लीज कमेंट डाउन बिलो. So please subscribe and share and like my video.